everyone. Today we are discussing the topic electric field and potential. So let's start with electrostatics. Electrostatics means study of the charges at rest position. So now move to the Coulomb's law. Coulomb's law says that the electrostatic force between two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Basically F directly proportional to Q1 Q2 and F directly proportional to 1 upon R square. जब इन दोनों को combine कर देते हैं then we are getting this formula F equals to K Q1 Q2 upon R square. K is your dielectric constant and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon Coulomb square. So now move to the definition of electric field. Electric field is defined as the electrostatic force experienced by any charged particle per unit charge. So we can say that electrostatic force per unit charge at any point is said to be electric field. So E vector equals to F vector upon Q naught. Here Q naught is your test charge. अब हम टेस्ट चार्ज की जरूरत क्यों पड़ती है? और टेस्ट चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है, काफ़ी स्मॉल होता है. उसका रीज़न ये है कि सपोज हमें Q पॉइंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं. तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, Q नॉट का कोई भी कंट्रीब्यूशन ना आए, इसीलिए हम Q नॉट का मैग्नीट्यूड स्मॉल रखते हैं. सो लेट्स प्रोसीड विद द डेरिवेशन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. Suppose there is a point charge Q and at point P we have to calculate the electric field. So let's proceed with the derivation. E vector equals to F vector upon Q naught. So F, there is a Q naught charge, test charge. So electrostatic force is K Q into Q naught upon R square. Suppose it is at R distance and there is a Q naught. So Q naught cancel. We are getting K Q upon R square. This is very important formula because it is used in various page. ये कई सारे डेरिवेशंस में यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्जेस का. इवन हम जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी निकालते हैं तो वहाँ पर भी हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर लिखते हैं जो कि K dQ upon R square हो जाता है. देयर इज ए स्मॉल चार्ज dQ. We can feel this definition by saying that electric field is the constituent part of the electrostatic energy, because electrostatic energy में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होता है और उसकी वजह से एनर्जी डेवलप होती है. सो लेट्स प्रोसीड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. So electric field lines are basically the imaginary curve that are originated from positive charge and terminate at the end of the negative charge, and they are basically used to represent the direction of the electric field at any point. So अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उस पॉइंट पर दिखाता है. इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट एनी सिंगल पॉइंट देन देयर आर द टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल. एंड these electric field lines always have continuous curve. They doesn't have any sudden break, or we can say that the electric field lines are not from closed loop. So अब हम बात कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पॉइंट चार्जेस की वजह से कैसा होता है. सपोज करें हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है कुछ इस तरह से. एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज देखें तो ये टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज इस तरह से कंट्रीब्यूशन होता है. एक जो मेन प्रॉपर्टीज इसकी ये भी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular on the surface of the conductor. Suppose there is a conductor and electric field line is always perpendicular on that surface. Why? तो हम मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो ये किसी न किसी एंगल पर होंगी. तो सपोज करते हैं कि ये किसी थीटा एंगल पर है. तो अगर ये किसी भी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कोई भी यूज नहीं है बिकॉज इसको नॉर्मल जो है वो बैलेंस कर देगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से चार्जेस जो हैं दे आर इन द मोशन विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चार्जेस की मोशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती हैं कंडक्टर की सरफेस पर। So now move to the very important part which is said to be electric flux, that is denoted by phi. So what do you mean by electric flux? Electric flux says that total number of electric field lines passing through any surface perpendicularly. So phi basically means E vector dot में ds vector. तो इट्स रिमेंबर कि हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं ऑलवेज। So now let's move to the वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का सबसे बेसिक जो एडवांटेज है, सपोज लेट्स वी आर डिस्क्राइबिंग नाउ व्हाई डू वी गेट गॉस लॉ। सो गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स that enclosed through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that particular surface. So phi equals to closed integration, this is the assignment of closed integration, E vector dot ds vector equals to q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ये है कि इसकी वजह से हम बहुत सारे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इजीली बता सकते हैं। और पर ये जो थ्योरम होती है ये बेसिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अप्लाई करते हैं हम, और जहां पर द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू ड्रॉ एनी गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस की कोई भी शेप जो होती है वो मैटर नहीं करती है। तो सपोज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनफाइनाइटली चार्ज की वजह से क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली, सपोज दिस इज इनफाइनाइटली चार्ज, इनफाइनाइट मींस रिलेटिव टर्म होता है ऑलवेज। तो अगर हम जहां पर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ ज्यादा है, इसलिए हम इनफाइनाइटली बोलते हैं। तो इसके लिए हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ली। गॉसियन सरफेस आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, तो हमने ये ले ली सपोज। तो इसमें तीन सरफेसेस हैं, एक कर्व सरफेस है, एक अपर सरफेस है और एक लोअर सरफेस है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज इस तरह से होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम फाई कैलकुलेट करें क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर, ओके, तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है इसको अगर एक्सप्लिसिटली लिखें तो ई ds cos थीटा हो जाएगा। इस वाले केस में देखा जाए तो cos जो होगा वो 0 डिग्री होगा ऑलवेज, बट इन लोगों के केस में cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि लोअर फ्लक्स अपर सरफेस और लोअर सरफेस की वजह से फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस की वजह से होगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी E इनटू एरिया, एंड एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होता है 2 पाई RL, और ये इक्वल में होगा Q इनक्लोज। Q इनक्लोज जो है वो ओनली लैम्डा है, बिकॉज़ हियर इट इज गिवन दैट इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज गिवन बाय लैम्डा। So there is a Q, so we always know that lambda equals to Q upon L, so Q equals to lambda L, so it comes out to be lambda L upon epsilon naught. When we simplify, we are getting E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught R. So हम देख सकते हैं कि गॉस थ्योरम की वजह से कितनी इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया इनफाइनाइटली रॉड का। इसी तरह हम कई और भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कर सकते हैं। So now we are discussing about the electric potential. What do we mean by electric potential? Electric potential means that the burden to bring a unit positive charge from infinite to any point in the electric field of any source charge. This is said to be your electric potential. So we can say that suppose there is a point and B point. Suppose हमें यहाँ पर एक चार्ज को लेकर है Q नॉट, तो हमें पता है कि इस Q, अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये सोर्स चार्ज है और ये Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है, तो इस Q नॉट की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर Q नॉट की वजह से हम यहाँ पर चार्ज को लाएंगे तो हमें पता है इस Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा और उसके अगेंस्ट हमें वर्डन करना पड़ेगा, तो वो एक एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है। तो हम इसी तरह डिफाइन करते हैं P इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, तो वर्डन पर यूनिट H है। So we can say that an SI unit of potential is volt, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। So now proceed with the small derivation.
let the point charges of the electric potential due to the point charge. Suppose यहाँ पर हमारे पास कोई Q point है और there is a point P, we can say that, and it is at position R. Always know कि finite body का जो reference point होता है वो हम infinite पर लेते हैं, because infinite पर potential जो होता है वो zero होता है, क्योंकि potential okay. So अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी infinite point से किसी Q नॉट चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स हम जानते हैं कि 1/4 Q into Q नॉट अपॉन में x स्क्वायर होगा। सपोज हम किसी भी x पोजीशन के लिए अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये जो बर्डन होगा वो कंटिन्यूअसली डिस्टेंस के साथ वेरी हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फोर्स वेरी हो जाएगा। तो हम एक स्मॉल जो है बर्डन कैलकुलेट करते हैं dx के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फोर्स चाहिए होगा। तो फोर्स किसी भी x डिस्टेंस पे कितना होगा, वो होगा 1/4 Q into Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो वी ऑलरेडी नो दैट dw इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रेशन ऑफ l वेक्टर डॉट बाय ds वेक्टर, दिस इज x एक्सिस। सो हमें पता है कि f और dx के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगेंस्ट बर्डन हो रहा है। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्चुअली में माइनस एन एफ डी एक्स। एफ हमारे पास पहले से ही है कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इस एफ फैक्टर की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके, एंड देयर इज अ साइन माइनस 180 वजह से। तो ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट से आर तक का है, तो इनफाइनाइट से हम आर को इनटू पे लाएं। हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इज -1/x, -1/x, और इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी से आर पुट करेंगे। इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इट कम्स आउट टू बी k q नॉट एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/r, because 1/infinity is 0, so it comes out to be 1/r. Now put in the definition of the electric potential, then V equals to d electric potential is defined as a burden per unit charge, so W upon Q. So there is a factor Q naught which is cancelled out, so we are getting K2/R. So ये भी एक important पैरामीटर है, V equals to K2/R. Thank you so much.